Okay, now this time I'm finally live. The previous two live were just testing for Chetna ma'am. Hello, it's my live. Hello, Mr. Praful. Hello, Andrea. I'm good. How are you? Hello, Mumo. India. Yes, I'm a mom of two kids. How are you all doing? Spank. Hello, George. Hello, everyone. So, now today, my guest is a mountaineer, and she is someone who reached and bore down to the mighty Mount Everest. So, today, in tunes to the inspiring journey of the Braveheart couple who tamed the mighty Mount Everest in their third attempt, not first, not second, in their third attempt. They worshipped mountains, and every time they set out on a mountaineering expedition, they were mentally prepared to have a brush with death. Before stepping out of their home, they would inform their children about their house papers, their insurance papers, their fixed deposits, and every important documents. Who knew there wasn't tomorrow? This is the story of Chetna and Pradeep Sahu, the couple who climbed Mount Everest together. They say it's Cupid who plays. They say it's Cupid conspiracy behind every love affair, but for them it was mountains which played the Cupid. Their passion for climbing mountains brought them together. In tunes to the love story of Chetna and Pradeep Sahu with the mountains. Let's go to Mount Everest together today. So I'm saying hi to Traveler Vicky. Hi, Traveler Vicky. Thank you. Thank you for the compliment. So let me add my guest now, Chetna ji. I have added my okay. Hello, Mukta in Drapes. Hello, ma'am. Hi, Nitu. Welcome to Intunes, and you are looking ravishing. Thank you so much. You are also looking very beautiful. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, so it's really a pleasure, ma'am, to have you here in Intunes, and I'm really happy that you accepted my request. And on my request, you created an Instagram account, and that's really a humble, I mean, you are so humble, ma'am. Thank you. It's a pleasure too. Okay, let's start, ma'am. So, welcome to Intunes first, and आप अपने बारे में कुछ बताइए, मैम. आपका बचपन कहाँ बीता? आप कहाँ की हैं? किस स्टेट को बिलोंग करती थी बचपन में? पहले तो मैं भारतीय हूँ। बस ये मेरा जन्म हुआ था गुजरात में, आनंद में, जहाँ पर अमूल डेयरी है। और मेरा थ्रू आउट पूरा एजुकेशन मैंने एमए एमएड किया और 4 इयर्स मैंने हायर सेकेंडरी में जॉब किया जब तक मेरा शादी नहीं हुआ। और जितना मेरा माउंटेनियरिंग का बेस है, रॉक क्लाइंबिंग, बेसिक कोर्स रॉक क्लाइंबिंग वगैरह मेरा गुजरात में ही हुआ है। तो ये मेरा जो पूरा एजुकेशन और स्पोर्ट्स का जो है वो क्लास 1 से ही मेरा था। और थ्रू आउट कॉलेज तक मैं हमेशा स्पोर्ट्स डे के दिन चैंपियन रहती थी। वाह. और गुजरात में एक माहौल है हम लोग का कि हम लोग थोड़े से जैसे अभी होता है कि लड़का लड़की साथ में जाए तो थोड़ा सा पब्लिक बोलती है। लेकिन गुजरात में जब हमारा नवरात्रि होता था तो अगर हमारा कॉलोनी का लड़का की कोई भाई हमारे साथ नहीं जाने से माँ भेजती है। तो शुरू से हम लोगों को मैंने काफी फ्रीडम रहा हम लोगों का। और जो भी हम सपने देखते थे उसको करने का बहुत सारा मौका मिलता था। वाह, वेरी नाइस, मैम. एक्चुअली गुजरात काफी अ, बहुत ही अच्छा स्टेट है. मैं भी रही हूँ कुछ टाइम गुजरात में, मैम. Okay, so
मैम, आपका माउंटेनियरिंग में इंटरेस्ट डेवलप कैसे हुआ, कब हुआ, कब आपको लगा कि मुझे माउंटेनियर बनना है? स्पोर्ट्स पर्सन तो मैं थी, और ऐसे ही खेत खलियान में घूमना वो सब मुझे अच्छा ही लगता था। लेकिन गुजरात में एक बार हमारा जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में जहाँ पर मैं आर्ट्स पढ़ती थी, वहां पर एक बेसिक रॉक क्लाइंबिंग का कोर्स के लिए हम लोगों को बोला गया। तो मैं वो कोर्स करने गई थी और उसमें 60 गर्ल्स थी। और जब रॉक क्लाइंबिंग खत्म हुआ पूरा कोर्स, तब उस दौरान मैं जब भी रॉक को देखती हूँ तो मुझे लगता था कि जैसे वो मुझसे बात कर रहे हैं। मुझे हमेशा वो पूरा अलाइव लगते थे। और पूरा 60 गर्ल्स में मैं उस टाइम में फर्स्ट भी आई थी। तो वहां पर एक इंस्ट्रक्टर थे, वो मुझे देखते थे, मैं बार बार खो जाती हूँ, पत्थरों के पास बैठती रहती हूँ, या रॉक से चिपक के बैठती हूँ, या पेड़ को लिपट के बैठती हूँ। तो वो बोले कि तुमको और इसमें आगे जाना है। मैं तो हाँ। तब उन्होंने मुझे बताया कि इंडिया में 3 अलग अलग जगह में है, हो रहा है। जब दार्जिलिंग में, उस टाइम में दार्जिलिंग में था, मनाली में था, और उत्तरकाशी में। तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं 3 इयर्स, चाहे बीए बीएससी जो भी करते, सेम माउंटेनियरिंग में आपका एडवांस एंड बेसिक एंड एडवांस कोर्स होता है। उसके करने के बाद आप फिर उसमें आगे जा सकते हैं। तो मैंने उनसे डिटेल ले लिया और पता किया कि इसको कैसे करते हैं। और सबसे पहला कि एक मिडिल क्लास, माने हमारा एक नॉर्मल फैमिली था, इतने रिच भी नहीं थे। और पर्टिकुलर अगर मैं माउंटेनियरिंग की बात करूं कि पहाड़ में, तो माँ पहले ही बोले कि नहीं नहीं, कुछ हाथ पैर टूट जाएगा तो लड़का अच्छा नहीं मिलेगा। तो और उसके टाइम में फीस भी 1 मंथ कोर्स की फीस कुछ 600 रुपीज थी। और आपको उत्तरकाशी आने जाने का खर्चा उस टाइम से 1000 रुपीज के कुछ आपको लगेगा। तो फीस कैसे लेना, तो मैं फिर ट्यूशन किया छोटे बच्चों का, मंथली 25 रुपीज। तो मुझे जितना फीस चाहिए था उतना मैं ट्यूशन पढ़ा के, और मैं फिर बेसिक कोर्स के लिए किसी को नहीं बताया था। ऐसे एक नेबर थे, उनका हेल्प लेके मैंने अप्लाई किया था और कोर्स करने में गई थी उस टाइम। फिर उस टाइम में जब कोर्स करके आई, मुझे पता चला कि भारत की पहली महिला जो 1984 में एवरेस्ट क्लाइम किए थे। तो मेरी मम्मी उसके बारे में पेपर में प्लीज बताया कि देखो गांव की लड़कियां कहाँ कहाँ चढ़ती और तुम अपना खुद का काम, माने पढ़ाई में। और पढ़ाई में मैं इतनी नहीं थी। मेरे सपने कभी कोई जीतने का, कि कोई प्राइज लेना या ट्रॉफी लेना, वो नहीं था। मुझे बस कुछ होने से लर्न करना था, उस जर्नी में चलना था। अगर 100 मीटर दौड़ रही तो मुझे वो दौड़ना, वो लास्ट में पहुंचूंगी जीतूंगी नहीं, मुझे सिर्फ दौड़ना। मैं अपना फोकस में जरूर रहती थी। तो जब मुझे पता चला कि भारत की पहली महिला, तब मुझे एक अंदर में इंटरेस्ट तो आया ही था। और मेरे लिए एक द्वार खुल गया कि देखो कहाँ से पूरा हाईएस्ट जो है, कितना क्या रोमांच रहा होगा। और बस फिर वो बचेंद्री दीदी का, जिसको मैं आज दीदी, उस टाइम तो हम लोग मैडम बोलते थे, लेकिन मेरा आज उनके साथ काफी सालों का एक रिश्ता है, एक अनोखा रिश्ता है जो कभी नहीं टूट सकता। और मैं तब से उनको फॉलो करती रही। और लकीली जब आप बोलते हैं आप जो ड्रीम देखते हैं, वो कहीं ना कहीं फिर आपको वो पनपता ही है। तो 15 साल की एज में कुछ वो एक सीड डल गया था माउंटेन का, कि उसका, उसको कहीं ना कहीं से फर्टिलाइजर, पानी, सनलाइट मिलता गया, वो पनपता गया। मैं अपनी लाइफ जीती रही, पढ़ती रही, जॉब भी किया। और जब कोर्स करने गई तो वो उस टाइम कोई एक्सहिबिशन में जा रहे थे। तो जस्ट वो ट्रेनी को जैसे मिलते हैं ना, तो मैं जस्ट उनको पीछे से, उनको धीरे से उनका टी शर्ट को जस्ट ऐसे ही उनका जैकेट में से टच किया। तो एक अंदर में उनको, बस फिर मैंने पीछे मुड़ के कभी उनको फॉलो करती रही। तो ये मेरी जर्नी वहां गुजरात तक में रही। और वाह, मैं फिर माउंटेनिंग फील्ड में आई। वाह, वाह, वेरी नाइस मैम, बछेंद्री पाल मैम। एक्चुअली मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। मैं बछेंद्री पाल मैम को भी चाहती थी इन ट्यून्स में इनवाइट करना। तो वो सोशल मीडिया पे नहीं है, तो उन्होंने बोला कि मुझसे नहीं हो, मतलब मैं नहीं करना चाहती हूँ। दैट वाज फाइन, बट मेरे लिए उनसे वो बात करना मेरे लाइफ का एक ड्रीम कम ट्रू हुआ है, और मैं सभी को बताती हूँ। मैंने बछेंद्री पाल से बात किया है, डू यू नो दैट? सो इट्स लाइक सेम विथ यू मैम, यू हैव कम टू इन ट्यून्स। ये मेरा एक ड्रीम कम ट्रू है एक्चुअली। थैंक यू फॉर दैट। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पे। समझ सकती हूँ। सो मैम, आप प्रदीप साहू सर से कैसे मिली? उनको कहाँ मिली? हाँ, एक होता है ना कि जब मैं एक माउंटेन जैसे बेसिक और एडवांस कोर्स मैंने कर लिया, उसके बाद में एक अल्पाइन स्टाइल कोर्स होता है जो इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, वो आपको, आप हर एक स्टेट से माउंटेनियर को अप्लाई करते हैं उसके लिए। तो मैं गुजरात से सिलेक्ट हुई थी और प्रदीप सिलेक्ट हुए थे उड़ीसा से।
तो हम उस कोर्स में ऐसा होता है कि जैसे आप एक ट्रेनी जाते हो तो आपके पास इंस्ट्रक्टर होते हैं और आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग, आपका स्टडी होता है, एग्जाम्स होते हैं, तो वो होता है। लेकिन अल्पाइन स्टाइल में आपको एक ही इंस्ट्रक्टर दिया जाता है, आपको एक पीक दिया जाता है, वो आपको पूरा प्लानिंग करना होता है और आपको 15 दिन में अपने आप को, एक जैसे बीएड कैसे होता है उस तरह से आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। तो उसमें प्रदीप मुझे पहली बार मिले। तो जब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ ग्रुप में, तब उन्होंने पहले ही बोला कि मैं टाटा से हूँ, मेरे लिए टाटा माने के एक स्टील फैक्ट्री, उससे ज्यादा मुझे कोई नॉलेज नहीं था। और फिर लेकिन उन्होंने जब ये बोला कि वो बचेंद्री मैडम को जानते हैं और उनके साथ उन्होंने क्लाइंबिंग किया है, वो मेरे लिए काफी था। बस फिर मेरी आंख उनके पीछे पीछे रहती थी। तो उस टाइम में भी मेरा ये जैसे कि माँ बाप मेरा कहीं शादी करानी चाहते थे, एक लड़का तैयार था, तो मैंने बोला मैं कोर्स करके आती हूँ, फिर बात करते हैं। सेम प्रदीप के साथ भी था कि कहीं ना कहीं उनका भी कुछ रिश्ता चल रहा था, लेकिन भगवान का कुछ अलग ही था। तो ट्रेनिंग के दौरान हम लोग पहली बार मिले दार्जिलिंग में, और वो बहुत वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। कोई भी सारा टीम मेंबर में इतना कोऑपरेट करते थे और कहीं पर भी तकलीफ होने से वो सबसे पहले आगे आते थे। तो मेरे को बहुत ही, एक तो बचत दीदी का नाम तो उनके मुंह से सुना था, प्लस उनका बहुत सॉफ्ट नेचर, एंड उसके चलते मैं थोड़ा अट्रैक्ट हुई थी। हम बहुत अच्छे दोस्त रहे, लेकिन मुझे पता था कि मेरा रास्ता अलग है। जहां तक रिलेशन बनाने का बात था वो उस टाइम में नहीं था, जैसे हम फ्रेंड्स, और मैं उनको फॉलो करती रही। तो पहली बार मैं उनको दार्जिलिंग में मिली थी। और सेकंड टाइम में जब हम गुजरात से एक एक्सपीडिशन था, तो कॉमन उन्होंने भी उसके लिए अप्लाई किया था, मैंने भी किया। वो था माउंट शिवलिंग, जो उत्तराखंड में गौमुख ग्लेशियर के ऊपर है। तो एक्सीबिशन के लिए हम लोग गए थे। तब तक बहुत कुछ चेंज आ गया था। मैं जिस लड़के से बात हो रही थी, उसकी मम्मी ने बोला कि शादी के बाद पहाड़ छोड़ना है। तो मैंने बोला पहले तो मैं आपको छोड़ती हूँ, पहाड़ की तो बात छोड़। तो मैं, मेरे दादाजी मेरे पीछे पड़ते थे कि एक बहुत मुश्किल से लड़का राजी हुआ था, तूने मना कर दिया, मैं तो वो पहाड़ छोड़ने की बात कर रही। तो मैं फिर चुप होके चली गई। और इधर में प्रदीप के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, वो भी वैसे ही एक ढूंढ रहा था कि वो उड़ीसा से थे, मैं गुजरात से थी, दोनों कल्चर अलग था, लेकिन जो एक कॉमन चीज था वो था पहाड़। तो ऐसे बातचीत में उनका भी कहीं ब्रेकअप हुआ था और मैं भी इधर छोड़ के आई थी, तो कुछ तालमेल दर्द के मिल गए। और एक्सपीडिशन के टाइम में भी मैं एक ऐसा पोजीशन में थी कि जहां उन्होंने अपने लाइफ का भी नहीं सोच के मेरी मदद की थी, और मैं एक रोप में फंस गई थी। वो अपना एंकर, अपना सेफ्टी एंकर छोड़ के मेरे लिए नीचे आए थे। वाह। तो वो एक टच एक तो था ही। तो मैंने सीधा ही बोला कि मैंने प्रपोज किया था। तो वो इतने बोला नहीं, मुझे परिवार में पूछना पड़ेगा मेरे भाई को। तो वो मुझे और अच्छा लगा कि एक लड़का अपनी पसंद का करता है, लेकिन ये है कि वो बोल रहा है कि मैं अपना भाई और अपने माँ को पूछूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, तब तक दोस्त बने रहेंगे। और लेकिन थोड़ा आगे चली, फिर बोला ना ना, ठीक है मैं तैयार हूँ। तो फिर हमने एक तपोवन जगह है वहीं पे शादी कर लिया। वाह। और फिर बोला कि अभी परिवार को कन्विंस करेंगे। तो उसमें हमको फिर 1 साल 1.5 साल लगा परिवार को कन्विंस करने के लिए। लेकिन बोलते हैं, जहाँ चाह है वही राह है। सही रहा है। और माउंटेन है, शायद माउंटेन का भी ब्लेसिंग था कि हम दोनों मिले। और धीरे धीरे एक ऐसा आया कि हम लोगों का फिर एंगेजमेंट हो गया, और हम लोगों ने फिर शादी करके 95 दिसंबर में शादी करके फिर मैं उड़ीसा परिवार में आई। वाह वाह। तो मैम, शादी के बाद आप लोग माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस पे हमेशा साथ जाती थी? एक चीज कोई ये है कि हमारा जो रूट है ना, वो माउंटेन है। अगर उसको कहीं भी हटाए, अगर आज मैं परिवार में भी हूँ तो बिकॉज ऑफ माउंटेन। अगर उससे मुझे जिसने भी दूर किया, मैं दूर चली जाऊँ। इतना स्ट्रांग है बॉन्ड है हमारा। तो जब मैं शादी करके आई तो मदर इन लोग, क्योंकि उड़ीसा में थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स, हमको घूंघट में रहना है, हाँ। प्रॉपर कपड़ा चूड़ी ये सब कुछ पहनना है। मैं सबके लिए तैयार थी। मुझे ये भी बोला गया कि तुमको जीन्स नहीं पहनना है, मैं तो ओके सब चीज छोड़ दिया। तो बोला घूंघट में रहना पड़ेगा, मैं तो अच्छी बात है, सनस्क्रीन नहीं लगाना पड़ेगा, हम घूंघट में चलेगा। तो इस तरह का मेरी तैयारी थी। तो मैं हर एक काम में, फिर प्रदीप, तो मेरे जो ससुर थे वो लोग फार्म हाउस थे, तो हम खेती बहुत करते थे। तो कहीं ना कहीं हम नेचर से जुड़े रहे। और जहाँ वो जॉब करते थे बामनीपल करके जगह, वो भी बहुत डेंस फॉरेस्ट था। तो एवरी संडे हम लोग का ज्यादातर नेचर के साथ ही समय बीतता था। हम लोग काफी शादी के बाद भी ट्रैकिंग एंड एक्सपीडिशन और अच्छे टेक्निकल एक्सपीडिशन के लिए भी गए। और सबसे बड़ा जो मेरे जीवन में एक आया टर्निंग पॉइंट जिसको बोलेंगे, जिस दिन मैं शादी करके 95 दिसंबर में, 18 दिसंबर को जब मैं बचंती मैडम का ऑफिस में वो ब्लेसिंग के लिए मुझे वो लेके गए,
आप जैसे बता रहे हैं ना कि आपको आवाज सुन के आपने ये लगा, सोचो कि मैं 80 मैंने उनका 84 से फॉलो कर रही थी। 95 दिसंबर में मैं उनको जब पैर छूने गई, क्योंकि प्रदीप उनको बहुत क्लोज, वो अपना छोटा भाई मानते थे। एंड दीदी वैसे भी बहुत बहुत, उनकी बातें मैं अभी आपको बहुत छोटा टाइम बता नहीं सकती, लेकिन वेरी बहुत मदरली। तो मैं जब उनका पैर छूने गई तब उन लोग एक ट्रांस हिमालय का प्लान चल रहा था, जिसमें अरुणाचल से लेके सियाचिन ग्लेशियर तक, उसमें आपका पूरा अरुणाचल, भूटान एंड नेपाल, सिक्किम, नेपाल, देन कुमाऊं गढ़वाल, गढ़वाल, हिमाचल, लाहौल स्पीति, देन लेह लद्दाख एंड सियाचिन ग्लेशियर, 4,500 किलोमीटर का पूरा ट्रेकिंग का एक हो रहा था, जो ओनली वुमेन्स के लिए हो रहा था। और मैं शादी का जस्ट उसी दिन में वो पूछे कि चलोगी, और मैंने हाँ बोला। वाह। तो उन्होंने, तो कभी कोई क्राइटेरिया होता है ना, कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई करते थे, क्राइटेरिया कि आपका ये क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन उस दिन में वो सीखी बचेंद्र दीदी से कि वो आप इतनी लंबी जर्नी के लिए जस्ट शादी करके आई है, वो 7 मंथ के लिए रेडी हुई है, तो उन्होंने ओके बोल दिया कि फिटनेस तो ये कर ले। तो सबसे पहले आप कोई ड्रीम देखते हैं, तो पहले मेंटली आप अगर तैयार है, तो जो सामने जो जौहरी है ना, वो आपको पहचान लेता है कि कितने पानी में कितना करेगा। कई लोग मुझे बोलते कि आप इतना किया है, आप ना सोशल मीडिया में ये है। मैं तो जिसको ढूंढना होगा वो ढूंढ लेता है रास्ता। हाँ, जरूर कुछ जगह में बताना जरूरी होता है, लेकिन जैसे आपने मुझे ढूंढा, मैंने पहली बार इंस्टाग्राम में, अदरवाइज मुझे तो व्हाट्सएप चलाना भी कभी मेरे लिए मुश्किल होता है। एंड थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करती हूँ कि अगर कुछ मोटिवेशन मिल जाता है टाइमली, और कुछ अगर इस एज में अगर मैं कुछ कर पा रही हूँ और उसकी असर मेरे फैमिली और फ्रेंड्स को तो है, लेकिन जो लोग नहीं जानते, आपके थ्रू अगर किसी को मेरा मैसेज भी जाता है, तो ये मेरा अहोभाग्य है कि मैं, मुझे जो मिला मैं उसको भी आप लोगों के साथ शेयर। तो वो जर्नी पूरा जो था ट्रांस हिमालय का, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। चाहे मैं एमए यूनिवर्सिटी में पढ़ी, लेकिन असली जो पढ़ाई है वो मेरा मदर नेचर के साथ खुला वो क्लासरूम में जो हुआ है, वो पढ़ाई, वो आज तक मेरी वो पढ़ाई है। और मैं उसमें बहुत ही स्ट्रांग बनती गई, और उसमें बच्चन दीदी का सपोर्ट, एक टीम, एक लीडरशिप उनकी, और अपना जो गोल होता है, तो टीम को लेके कैसे चलना, क्योंकि दो बर्तन होने से आवाज तो आना है, लेकिन उस आवाज को, उस दर्द को किसी स्ट्रेंथ में उसको कन्वर्ट करना, तो वो जो है, फिर वही जो लेसन है वो मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी, परिवार के साथ में भी, ये सब यूज होता है। तो मदर बचन दीदी, उन्होंने मदर नेचर के साथ इतना बड़ा क्लासरूम दे दिया, तो हम लर्न, आज भी हम लर्न करते जा रहे हैं और कर रहे हैं। वाह, ऑसम मैम, ऑसम। सो ओके, सो शादी आपकी जब प्रदीप साहू जी से हुई, तो आई मीन आफ्टर फ्यू इयर्स बेबीज भी हुए। सो बच्चे जब आपकी लाइफ में आ गए, तब आप माउंटेनियरिंग के लिए कैसे जाती थी? कैसे मैनेज करती थी वो? हाँ, बच्चे हुए वो तो एक अलग ही है, जब मदर होना इतना बेस्ट पार्ट मेरा रहा। लेकिन उसको भी, बिकॉज हम लोग माउंटेनियर में बैलेंस कैसे करना है हम जानते हैं, तो हम फिर जो साथ में जाते थे, हम फिर बारी बारी जाने लगे। बच्चे के पास मैं रहूंगी तो वो क्लाइंबिंग के लिए जाते थे, और प्रदीप, और जब वो रहेंगे तो मैं क्लाइंबिंग के लिए जाऊंगी। और मैं ज्यादातर तो बच्चे दीदी के साथ ही, मेरा थ्रू आउट 97 से मैं अगर जितने भी अगर मेजर एक्सपीडिशन किए हैं, तो मैंने बच्चे दीदी और टाटा स्टील के थ्रू ही किए हैं। ओके। उनकी स्पॉन्सरशिप के अंडर में मैंने किया है। सारा लर्निंग भी मैंने वहीं से ही सारा मेरा हुआ है। और एवरेज का जो है वो हमने अपना इंडिविजुअल, एक फाइनेंशियल पार्ट बोलेंगे, वो हम अपने आप किया है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लिया था। लेकिन जो तैयारी है, मेरी जो सारी तैयारी है, जो मैं एवरेज के लिए जो तैयार हुई थी मेंटली फिजिकली, वो सब कुछ देन है टाटा स्टील एंड बचेंद्र दीदी, टीएसएफ, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के जितने प्रोग्राम्स थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी टाटा में जॉब करते थे, तो मैं बहुत कुछ उनके साथ टच में रहती थी, और काफी प्रोग्राम्स का मुझे पता चलता। तो मुझे याद है कि जब मैं प्रेग्नेंट रही वो ईयर, एंड बच्चे लोग 2 साल के हुए, उतने पार्ट में मैं शायद माउंटेन में नहीं गई, अदरवाइज मैं, हम दोनों ने बारी बारी माउंटेन का टच में रहा। वाह। ओके मैम, सो आप जब माउंट एवरेस्ट पे आई मीन 2014 में गई, और 2014 में आप लोगों ने अवलांच एक्सपीरियंस किया आपके बेस कैंप के पास। 2015 में गई, उस टाइम पे बहुत ही मेजर, काफी हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया, और फाइनली आप जी 2016 में इस माउंट एवरेस्ट समिट पहुंची।
सो उसके बारे में पूरा बताइए, 2014, 15, 16 वो कैसा रहा, क्या क्या हुआ? उससे पहले मैं थोड़ा एक बात बताना चाहूंगी कि जैसे हम लोग लाइफ जीते, जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, एक रहते हैं कि हम चार धाम यात्रा करें मरने से पहले, तो हम माउंटेनियर हैं, तो एक रहता है कि एक हाईएस्ट पॉइंट में हम लोग जाए और वहां पर अपना माथा टेके। तो 2013 में एक प्लेटो पिक था अनक्लाइंब, जो सासे ग्रुप में है, लेह लद्दाख एरिया में है। तो वो पिक के लिए मैं भी प्रदीप के साथ और बंगाल का एक टीम था उनके साथ गई थी। मैं कैंप 2 तक गई, और वो करने के बाद में हम जब नीचे बैठे थे तब मैं 47 थी। तो प्रदीप बोला कि क्या करना है, अभी हमारी एज हो रही है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, एवरेज करना है कि नहीं करना है। तो मैं तो हाँ जरूर करेंगे, चलो कोशिश करते हैं। मुझे इतना डेट भी नहीं पता था क्या खर्च आता है, मैं हाँ बोल देती हूँ, बाद में मैं रास्ता ढूंढती हूँ। मुझे जो करना होता है वो मैं पहले हाँ बोलती हूँ, हाँ चलो करते हैं। फिर घर आके उन्होंने इंटू थ्री मेरे किताब मुझे दे के गए कि तुम पढ़ लेना थोड़ा, मैं आता हूँ। तो मैंने फिर जो किताब पढ़ लिया। कि बोला कैसा लगा, मैं तुम्हें एवरेस्ट तो जाना है। तो बोला बस मैंने तुमको इसलिए पढ़ने के लिए दिया था कि बुक पढ़ के इधर तुम बोल देती नहीं नहीं इतना दर्द दर्द उसमें क्यों जाना है, और लेकिन तुमने हाँ बोला तो हम लोग सीरियसली कोशिश करते हैं। और सबसे पहला अगर कोई प्रॉब्लम था तो बजट का था, क्योंकि उस टाइम में आई थिंक 18 lakhs वन पर्सन को लगता था, जिसमें 10,000 यूएसडी नेपाल गवर्नमेंट आपका रॉयल्टी लेता है एंट्री, और बाकी आपके इक्विपमेंट्स है और जो भी है उसका खर्च लगता है, तो हम दोनों मिला के तो 36 lakhs तो चाहिए। तो उस टाइम में था, अच्छी जॉब थी, सब कुछ था, और मेरा भी और कोई खर्च नहीं था। मैं साल भर में शायद जूता और वो पहाड़ के कपड़े खरीदी थी। मुझे ना गहनों से, वो सब मेरे गहने पता नहीं, कभी किसी ने टोका भी नहीं पहनती हो, क्योंकि मैं ज्यादातर पहाड़ में, तो ऐसे फालतू खर्च भी नहीं रहे। लाइफ बहुत बैलेंस था, तो पैसा का नहीं आता था। और दूसरा कि माउंटेन्स में इतना रहते थे, और हमको फॉग में चलने की आदत। फॉग देख के हम ये नहीं रुक जाते अरे आज तो फॉगी है नहीं जाते, ऐसा नहीं। फॉग है, हम एक स्टेप अंदर जाते हैं, हमको आगे का रास्ता दिखाई देता है, वो हमारी ट्रेनिंग में आता है। और हम पूरा लाइफ तो उसी को एंजॉय किए। तो पैसा एक फैक्टर नहीं आता। आज भी मैं एम्प्टी पॉकेट चलना पसंद करती हूँ। आसान नहीं होता, लेकिन हम कर सकते हैं वो मुझे पता है। तो उस टाइम हमने सोचा कि हाँ हमारा ये दोनों का हो जाएगा, और हमने अप्लाई कर दिया था। तब प्रदीप के एक रुड़की के जो आदित्य गुप्ता, वो भी हमारे साथ थे, और कुछ बंगाल के दोस्त। तो हम लोग जब इसके लिए तैयार, और प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं, कोई मैंने कोई कमी नहीं रखी थी हमने, क्योंकि ये एवरेस्ट पे हम जानते थे। और यहाँ हमने अपने पहाड़ मैंने घर में पहले एवरेस्ट चढ़ते थे, तो किस तरह से करना है, घर का सेटिंग करके जाना, वो सबसे बड़ी बात थी। बच्चे छोटे थे, 11-12 साल के, उनको ये बोलना, उनको तो इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं तुरंत के मेरे पास इतने गहने हैं, और ये डायरी में बेटा कुछ नंबर लिखा है, हमारी एब्सेंस में तुमको बताना है परिवार को। तो पूछती मामा एब्सेंट मैम तुम लोग तो आ ही जाओगे ना, मैं बेटा कहीं कभी चोट लगा, हॉस्पिटल में रहे, इमरजेंसी हुआ, तब ये डायरी को यूज करना है। तो ऐसे हम अपने बच्चों को इस तरह से बताना, वो मेरे लिए बहुत पेनफुल होता था। और 14 में हम लोग गए, और जस्ट हमारा बेस कैंप में जस्ट हम लोग सेटल हो रहे थे। और हमारा जो एक कैंप वन में, आप एवरेस्ट पे किस तरह जाते हैं वो तो यूट्यूब में हर जगह आपको मिलेगा। कैंप वन में लोड फेरी होने जा रहा था फर्स्ट डे। उसी टाइम में एवेलेंच आया, और उसमें 16 शेरपा का डेथ हुआ था। तो ये 16 शेरपा का जब डेथ हुआ, तो वो लोग उसको बोले अक्टूबर मान के, नेपाल गवर्नमेंट, वहां शेरपा लोगों ने इतना अल्टीट्यूड में मीटिंग हो रही है, और फिर उसको अल्टीमेट बंद कर दिया गया। और क्लाइंबर लोगों को बोला गया कि आपका जो ये है रॉयल्टी जो है, वो आप 5 years तक यूज कर सकते हो, यानी 5 years आपका ये 10,000 यूज वो रहेगा, बाकी का पैसा चला गया। तो बहुत हैवी हार्ट से हम लोग वापस आए। लेकिन ये भी एक लर्निंग है, नेचर आपको ये भी सिखाता है कि आप जब गिरते हो तो उठो और फिर चलो। तो हम लोग वापस आए, और इतना आते, क्योंकि वैसे भी परिवार में लोग पूछते थे कि क्या 47 एज में हम जब स्पॉन्सरशिप के लिए मैं जाती थी, तो बोला इस एज में आप ही सोचो कैसे आपको स्पॉन्सरशिप दे। तो हमको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता था, फिर हमने मांगना तो बंद ही कर दिया था। और जब वापस आए तो कई लोग ये भी बोलते थे कि देखो इस एज में करने गए थे, भगवान भी नहीं चाहता है आपके आप लोग जाए। हम कुछ नहीं बोले, घर आके फिर अपना नॉर्मल रूटीन पे लगे। 2015 में फिटनेस का हम रखते थे डेली, वो तो आज भी अगर हम क्लाइंबिंग के लिए नहीं जाते हैं, तो भी नॉर्मल फिटनेस हर एक काम में, अलग से नहीं करती, लेकिन घर के जितने सारे काम हैं वो हम करके उसमें एक्सरसाइज को हम जरूर डालते हैं। तो फिर 15 में हम लोग बोला कि चलो जाएंगे, तो परिवार ने भी सपोर्ट कर दिया कि चलो ठीक है तुम लोगों का ड्रीम है। तो फिर हम लोग गए 48 एज में फिर से। प्रदीप मेरे से 8 महीना बड़े थे। फिर हम लोग गए, और जस्ट उसका भी बहुत अच्छे से पूजा पूजा होगा,
जस्ट आधा कुंभो आइसक्रीम में था, आधा तक जस्ट गए थे, उसी रात में अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक में दुनिया हिला दी। तब मैं पूरा एक ग्लेशियर में मैं वॉक कर रही थी, तब प्रैक्टिस कर रही थी। अब कभी भी अपने दोस्त के साथ दूसरी जगह में वो स्नो क्राफ्ट वगैरह कर रहे थे। और एकदम मैंने देखा कि जैसे वॉल्केनो फटता है ना, उस तरह का देखा, और उसके गैस बॉटल भी देखा, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक रॉक था, मैं उसके पीछे दौड़ी, मेरे पीछे बहुत लोग मेरे पीठ के ऊपर। और लकीली ट्रेनिंग में मेरा एक चीज है कि अगर आप जो लर्न करते थे, तकलीफ में मैं अपना बैलेंस नहीं घुमाती हूँ, मुझे क्या करना है वो मैं जरूर सोचती हूँ। तो हमको ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि कभी एवलेंस में फंसते हो तो आप अपना एयर पॉकेट बना लो। तो मैं ऐसे करके बैठ गई थी, मेरे पीछे बहुत है, मैं चैंटिंग सुन रही हूँ। और जो फ्यू सेकंड्स था, लेकिन जब अटक खत्म हुआ तो इतना ब्यूटीफुल एवरेस्ट बेस कैंप, पूरा जैसे किसी ने कफन फैला दिया है, व्हाइट चादर। और मैं जैसे देख रही हूँ, कोई शिल्पा का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर मुड़ा पड़ा है, इधर में ब्लड है, इधर में कढ़ाई पड़ा है, गैस बॉटल पड़ा हुआ है। थोड़ी देर के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ऐसे ही खड़ी हूँ, मैं एक शेरपा की मदद करने जा रही थी कि बड़े वो करा रहा था, सोचा था मेरा शेरपा का जो मेरा हमारी एजेंसी के शेरपा थे, उसके भाई आए, बोला मैडम चलो, हम लोग आपको कब से ढूंढ रहे थे करके। वो घसीट के हमारा जहाँ कैंप था, तब तक नीचे बहुत लोग हमको ढूंढ रहे थे। फिर हम लोग टीम पूरा मिल गया। फिर मेरे हस्बैंड वगैरह रेस्क्यू के लिए चले गए। तो वो कुछ पल में भगवान ने कुछ कहाँ से कहा। तो ये माउंटेनियरिंग में एक लर्निंग, वैसे लाइफ के हर एक लेवल कब कौन सा टर्निंग पॉइंट आता है पता नहीं। और वो सबसे खड़ा था कि मैं हर एक पल, मैं आज भी नेक्स्ट मोमेंट में अभी आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन मैं यही रहती हूँ कि मेरा लास्ट मोमेंट है, मुझे जो बोलना है मैं अभी करूंगी। मेरे दिल में जो आता है मुझे अभी करना है, अगर वो सही है, किसी को हर्ट नहीं करना है, वो मैं अभी जीऊंगी। तो उस समय भी हम लोग ने किया, सब 1 वीक में सेटल भी हो गया। फिर से मीटिंग हुआ, फिर से उसको स्टॉप किया गया। तो हम लोग थोड़ा फाइट भी किए प्रदीप, एजेंसी लोग कि क्यों आप लोग नहीं खोल रहे। एवरेज में जो आते अपना व्हील बना के, नेचर एवलेंस आना कि तूफान आना, ये नेचर का तो सब आता ही, उसकी तैयारी के साथ तो आते हैं। उसमें गिव अप करना, लेकिन बहुत लोगों का डेथ हुआ था। तो वो भी बात है, क्योंकि उसे पहाड़ में नहीं आया था, काठमांडू में, पूरा नेपाल कंट्री में आया था। तो फिर हम लोग सबसे वापस आना पड़ा। तब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि आपका रॉयल्टी 2 साल और रहेगा। तो अनदर फिर उस टाइम के भी जो एक्स्ट्रा पैसे थे वो भी चले गए। अभी थर्ड टाइम में था, तब तक आपका ना, लोग बोलते हैं थर्ड चांस एक चांस होता है करना चाहिए, लेकिन हमारे लिए ऐसा हुआ कि बच्चे दोनों 10 एंड 12 थी। मेरा बेटी जो थी, अरे बेटा जो था, बेटी 10th में थी और बेटा 12th का एग्जाम दे रहा था। और उसका कुछ हेल्थ इश्यू भी बेटी का हुआ था। तो प्रदीप बोल रहे हैं कि क्या करेंगे, देखा पैसा अब नहीं है हमारे पास अभी, और 2 बार हम डाल चुके हैं पीएफ। वो तो कहाँ पास होता है, मैं तो वैसे भी फाइनेंशियल पार्ट देखती भी नहीं थी। जितना डेली खर्च होता वही मुझे ज्यादा, वो पैसा में मुझे आज की डेट में भी नहीं आता है काउंट करना। लेकिन कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, तो बोला पता नहीं, इस बार नहीं जाएंगे। तो हमने बोला ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा करते थे। तब मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, उन्होंने भी पे किया हमारा पैसा, हमारे सिर्फ पैसे तो नहीं, ये दोनों जाएंगे इस बार, लास्ट बार एक बार ट्राई कर ले। तो उस टाइम में जब हमने इतना सीरियसली एक्सरसाइज नहीं किया है, मैं तो घर में ही खाना या अपने सीढ़ी में या घर में ही बैग लेके प्रैक्टिस, फिर हमेशा बैग में 10 kg का बैग रखती रहती थी। पता नहीं नेचर कब बुला दे, क्योंकि रातों रात आपका फिटनेस नहीं होता है। अगर आपके सपने हैं, आप उसको डेली डालिए, डेली एक्सरसाइज करिए, खेलती रहिए। कुछ लोग बोलते नहीं, कहेगा आप अरे खा लो, कल क्यों देख, कल किसने देखा है, खा लो। तो मैं बोलती हूँ अगर कल मिल गया तो इनडाइजेशन होगा, इसे उतना ही खाओ कि कल अगर लाइफ मिलता है तो आप हेल्थी रहो। तो ये जो हमारा था कि हम फिर 16 में मेरे देख के बताया कि नहीं आप दोनों जाएंगे। और हम लोग की बच्चों का सब कुछ अरेंजमेंट करके, तब तक नेचर ने बहुत कुछ सिखा दिया था, तो मैंने बहुत डिटेल में पासवर्ड है ये सब कुछ डायरी में लिखा। इतना है, बेटी भी थोड़ी समझदार हो गई थी, तो उसको भी डर लगने लगी, मामा ये बोल रही तो अभी बच्चों को करके डेट, लाइफ एंड डेट का। मैंने बोला बेटा डेट कहीं भी आता है, सब लोग पहाड़ जाके तो नहीं मरते है ना, सारी दुनिया में कौन माउंटेन, सब तो माउंटेन में जाके नहीं मरते हैं। और डेट के चलते तो सपने नहीं टूटना चाहिए, नेवर। तो फिर बच्चों को, तब बच्चे थोड़े समझदार थे, लेकिन मैं उनका दर्द फील कर रही थी एज ए मदर। लेकिन एक जाना था तो फिर प्रदीप का सपोर्ट था, और हम दोनों साथ जा रहे थे। मेरे हस्बैंड जाता तो अरे वाइफ मेरी घर में अकेली है, मैं अकेली जाती तो अरे पति घर में अकेले। और मुझे पता है कि बच्चे स्टेबल है पूरे, 13 14 मैंने 15 16 साल के हो गए हैं, और परिवार मेरा बहुत स्ट्रांग है। और हम लोग फिर 16 में निकले। तो 16 में माँ जो सागर मत हम बोलते हैं, उनका ब्लेसिंग भी रहा हमारे पर। और उस टाइम में हम लोगों ने एक
सक्सेसफुल रहा हमारा, और हमने पूरा टॉप में जाके माथा टेका। तो ये 14, 15 और 16 की स्टोरी है। वाह! तो वो फीलिंग कैसा था जब आप टॉप पे पहुंची और एकदम फाइनली आप 3 साल के ट्राई के बाद फाइनली आप माउंट एवरेस्ट के टॉप पे थी, तो उस टाइम पे कैसा फील हो रहा था? तो 16 में जब मैं गई, तब पहली बार मेरा बेटा थोड़ा पढ़ाई में, माने अच्छा नहीं, उसको अच्छा नहीं कर रहा था। माने हमेशा थर्ड में हमेशा बोलती पासिंग मार्क लाना है बेटा, और कुछ नहीं लाना है। लेकिन जनरल टेस्ट में उसका 100 में से 2 मार्क्स ऐसे मैथ में वगैरह में आता था। तो मैं, और वो जब बोर्ड एग्जाम हम तो चले गई बाहर, तो मैं हमेशा प्रेयर करती थी कि भाई उसके खाली पासिंग मार्क आ जाए। तो जब हमारा फाइनल, हम फाइनल क्लाइम के लिए जब निकलने वाले थे, एवरेज के लिए आपको मिनिमम 1.5 मंथ लगता है, जिसमें 1 मंथ आप एक्लिमेटाइजेशन वगैरह करते हैं। कैंप 2 कैंप 3 तक आपको अप डाउन करना होता है। वेल एक्लिमेटाइज होते हैं, आपको लेडर में कैसे क्लाइम करना है, क्रेवर्स में कैसे, रोप अप, जुमारिंग जंप करते हैं। और जो ध्यान देना है वो हमको हमारे एजेंसी के जो शेरपा ट्रेन होते हैं हमको सिखाते हैं। तो जिस दिन निकलना था तब तक बेटे का रिजल्ट आया कि वो 76% से पास हुआ है। वाह! बस फिर मेरे को मिला कि नहीं, अब कुछ जाना है अभी इसके लिए। और दूसरा बात साथ मेरे साथ ये हुआ कि कुछ मेरी गलतियां थी कि मैं थोड़ा सा बहुत फैमिली पर्सन भी हूँ। मैं बहुत कुछ अपना मैसेज मैं चाहती हूँ कि मैं आज की बात में जिससे प्यार करती हूँ, या जो मुझे प्यार करते हैं और जो सच में मेरे लिए कंसर्न रखते हैं, उनको साथ में जरूर शेयर करना पसंद करती हूँ। तो कई रात ऐसी हुई कि मैं स्लीपिंग बैग से बैठ के रात को जब मिलता था नेटवर्क, तो मैं मैसेज करती थी, तब कई बार मेरा पेट खुला रह जाता था। और ये छोटी छोटी बातें थी जो निगलेक्ट की। और मुझे कफ एंड कोल्ड बहुत सीवियर, जिसको कुब्बू कफ कोल्ड बोलते हैं, और वो जो लग जाता है ना, वो बहुत ही डेंजर होता है। और थ्रू आउट मुझे कफ कोल्ड खांसी काफी रहा, जिससे मुझे काफी वीकनेस, जब फाइनल 5 डेज जो होता है, कैंप 1, 2, 3, 4 समिट कैंप होता है। समिट कैंप में आप रात को निकलते हो, रात भर चलते हो। नेक्स्ट डे जब आप पहुंचते हो, और सेम डे आपको नीचे कैंप माने समिट कैंप आना होता है, और नेक्स्ट डे आप कैंप 2 आते हो। लेकिन जैसे जैसे आप अल्टीट्यूड में, और मैंने लास्ट जो है विवरण तक पेन किलर मैंने ले चुकी थी, और मेरा जीभ में काफी साबुदाना जैसे ब्लिस्टर आ चुके थे। और नॉर्मल जो होते हैं, मेरे हस्बैंड भी, उनका भी स्पाइन सर्जरी हुआ हुआ था बड़े कुछ साल पहले, और उनका भी एक स्पेस से हम लोग चलते थे। जब लास्ट हम साउथ पोल जब हम पहुंचे, साउथ पोल के बाद जब समिट में निकलना होता है, मैं 4 बजे करीबन पहुंची थी। और 2 घंटे बाद, क्योंकि मैं एक स्लो एंड स्टेडी मेरी स्पेस थी, तो मुझे 6 बजे मेरे सेपा बोले कि हम 6 बजे रात को निकलेंगे। तो 2 घंटा मुझे सोने के लिए बोल दिए, उसमें खाना पीना है। लेकिन मैं बहुत टायर्ड थी, तो फिर 9 बजे निकले। तो उससे पहले हम लोग सारा ड्रेस वगैरह चेंज कर लेते हैं, लास्ट फूड खा लेते हैं अच्छे से, फ्लूइड अच्छे से लेते हैं, और ऑक्सीजन लेके तैयार होकर हम जब बाहर निकले, तो मैंने और प्रदीप ने एवरेस्ट जाने से पहले भी हमने डिसाइड कर लिया था कि एवरेस्ट टॉप में अगर हम लोग 1 बजे से पहले अगर नहीं पहुंचते हैं, जहां भी पहुंचते हमको वापस आ जाए, चाहे क्लाइंब हो या ना हो। 1 बज गए माने हम टर्न ले लेंगे, क्योंकि जितना पास्ट के जितने एक्सपीरियंस है, उससे हमने लर्न किया था कि 1 बजे के बाद रहना सेफ नहीं है, चाहे वेदर अच्छा हो तो भी। जितना हम गए उतना ही हम लोग करेंगे। दूसरी बात, हम दोनों ने ये डिसाइड किया था कि आप अपना इंडिविजुअल शेरपा को लेके जाते हैं, तो आपका शेरपा आपके साथ, तो मैं प्रदीप का वेट नहीं करूंगी, प्रदीप मेरा वेट नहीं करेगा। मैं तो वैसे भी स्लो थी, प्रदीप भी वेट करने का था, तो हमने ये भी नहीं सोचा कि साथ में पहुंचेंगे कि ये करेंगे, वो नहीं। जहां होंगे हम इंडिविजुअल, क्योंकि हमारा शेरपा का भी लाइफ वो भी ऑक्सीजन पर है। तो कैंप फोड़ने के बाद में हमने एज अ हस्बैंड वाइफ नहीं, एक एज अ क्लाइंबर हम लोग अपना इंडिविजुअल ही रहे। मेरे साथ ये हुआ कि मैं जैसे निकली, जस्ट 1 घंटा भी नहीं हुआ था, एक ट्राइंगल फेस बोलते हैं, वहां तक भी हम नहीं पहुंचे थे, और मुझे खांसी आना शुरू कर दी। तो मैंने शेरपा दाजू से पानी मांगा, तो बोला आप अभी अभी तो शुरुआत नहीं, मैम आप पानी मांग रही है। और शेरपा दाजू ने हमको नीचे बोल दिया था कि उस जगह में हम आपको गाली भी दे सकते हैं, हम गुस्सा भी हो सकते हैं, तो आप ज्यादा ये मत करना। तो मैं तैयार थी, मैं तो ठीक है, मैं तो, लेकिन दाजू थोड़ा जीप ये हो रहा है, ऑक्सीजन लगाने से मेरा जीप ऊपर में लग जाता है, और मुझे सफोकेशन हो रहा है। तो बोला नहीं मैम, अभी पानी नहीं, जब बाल्कनी माने जो रात को आएगा 2 बजे, जो जहाँ पर हम लोग अपना ऑक्सीजन चेंज करते हैं, ऑलमोस्ट 27,000 फीट के आसपास, तो उन्होंने बोला कि आप वहां पर पानी सब मिलेगा। और इतना क्यू होता है और इतनी भीड़ होती है, आप स्लो स्टेप चल रहे थे, बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन मुझे बहुत दर्द था। मुझे कफ कोल्ड ने इतना मेरा हालत खराब करके रखा था, और मैं हाई जो डोज होता था मेडिसिन खा लेती। उस अल्टीट्यूड में मेडिसिन आपका काम नहीं करता है, और मुझे लगता है मेरी रिब्स शायद जैसे
एक नाइफ के जैसे जैसे अभी फट के बाहर आ सकती है, इतना मैं पेन बर्दाश्त कर रही थी। तो मैं जब 1 घंटे बाद मैंने दाजू को बोला, दाजू मुझे नहीं जाना है, मैं वापस जा रही हूँ। तो बोला मैम ठीक है, थोड़ा सा कोशिश कर लो आगे। तो फिर मैं चुप होके, फिर वो भीड़ भाड़ में रात को 2 बजे, जो जहाँ पर बालकनी बोलते हैं, जहां से फिर साउथ समिट जाते हैं, और साउथ समिट के बाद में हीलरी स्टेप आता है, फिर समिट आता है। तो रात का 2 बजे वहां हम लोग एक ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक होता है। तो वहां ऑक्सीजन चेंज हुआ, वहां मुझे प्रदीप मिले। तो मैंने प्रदीप को बोल दिया कि मुझे भी आगे नहीं जाना है, क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो बोला हमने डिसाइड किया था कि हम अपने शेरपा की बात सुनेंगे। अगर दाजू बोल रहा है, शेरपा को हम दाजू बोलते थे भाई, कि अगर यहाँ से आपको वापस चले तो आप तुम चली जाना। फिर वो आगे, क्योंकि उनका 50 मिनट्स हो गया, तो वो टीम के साथ आगे चल दिए। और मेरा शेरपा ने मुझे पानी दिया, मैं तो दाजू नीचे जाना, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे लगा मैं चल पाऊंगी। बोला ठीक है मैडम, आप खड़े हो जाइए, मैं देखता हूँ, आप 5 कदम चलिए। मैं चली तो उन्होंने फिर एंकर आगे वाले रोप में जो ऊपर जाता है उसमें एंकर डाल दिया। उसका मतलब है कि मुझे चलना है। वो तो बाद में उन्होंने बताया कि अगर आप खड़ी नहीं होती तो मैं आपको ले आता, लेकिन आप खड़ी हो गई, तो आपका वो मेंटली था, और आपने इतने साल वो किया है, तो मेरा काम था कि आपको समिट की तरफ ले जाता। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, उनका पैर देखती रही और चलती रही। जब सनराइज हुआ, तब मेरा राइट सनराइज में जब देखा साउथ समिट का इधर से, और वो आज तक, फोटो वोटो तो छोड़ो, मैं तो चलना ही तकलीफ हो रहा था, फोटो का तो मेरे लिए बात नहीं था, बाद में सब टीम से मुझे फोटो मिला। लेकिन वो सनराइज में आज तक नहीं, तब मतलब बेस्ट सनराइज जिसको मैं जिंदगी में, वो जैसे खिला, मुझे और ताकत आ गई। और साउथ समिट दिख रहा था काफी दूर पर, और बीच में एक और रॉकी फेस आया। लेकिन जब आप अंधेरे में चल रहे ना, तो आपको नजर नहीं आता ना, तो आप में हिम्मत होता है। लेकिन जब आप लाइट में देख लिया चारों की, तुम किस हाइट में खड़े हो, चारों और फॉल और ऐसे दिख रहा है, तो मेरा हार्ट थोड़ा सा, हिम्मत मेरा ये हो गया, और मैं चलने के में रुक गई। दाजू ऊपर से बुला, रॉक के आप करिए, लेकिन मैं पैर नहीं उठा पा रही। कुछ आर्मी के जवान और कुछ लोग जा रहे थे, एनसीसी की लड़कियां थी। मैं बोल रही थी कोई मुझे थोड़ा सा पुश कर दे, लेकिन मदद ऐसी कोई नहीं मिलती थी। सब बाईपास अपना इनका, क्योंकि उस टाइम में एक एक सेकंड मायने रखता है। और मेरा दाजू ऊपर ही बैठा है, और वो गुस्सा में, मैं तो दाजू मैं नहीं आ पा रही हूँ। नहीं आपको आना है, कोशिश करो। फिर उन्होंने एक रस्सी डाला और मुझे थोड़ा सा ये किया। फिर मैं चले गई, और फिर साउथ समिट जब पहुंची, साउथ समिट के बाद में फिर सबसे खतरनाक एक रीज आता है, जो आपको हिलेरी स्टेप तक का, वो पूरा पूरा फ्री फॉल है। अब एक तिब्बत साइड, मैंने चाइना साइड, और एक इंडिया साइड, उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। तो जब हम वो रीच क्रॉस करे थे, तब मेरा ग्लव्स जो भी हुआ कुछ लूज हो गया था, उड़ के चला गया। सब लोग मेरे आगे पीछे थे, उनका हार्ट टीम था। मेन ग्लव्स अंदर में कॉटन वार्म पहना है, और ऊपर में एक रेक्सिन था जो वाटर प्रूफ होता है, वो उड़ के चला गया। उधर से एक हवा आया और वापस ग्लव्स मेरा पैर के पास आया, और फिर मैंने पहन लिया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे इसको टाइट बांधना है। भगवान ने एक बार इंडिकेशन दे दिया, लेकिन मैं उसको ब्लेसिंग समझ के पहन लिया, लेकिन टाइट फिट से भी मैंने नहीं किया। और उस अल्टीट्यूड में शायद ऐसा हो भी सकता है। फिर मैं हिलरी स्टेप तक जब गई, तब प्रदीप वापस आ रहे थे क्लाइंब करके। तो मैंने बोली आपके साथ वापस चलूं, टॉप तो दिखाई दे रहा है। जब बोला टॉप दिखाई दे रहा है, लेकिन तुमको तो वहां जाके फोटो हमको प्रूफ देना होता है, ज्यादा दूर नहीं, 20 मिनट से तुम करके आ सकती हो। तो मैं वहां पर उसको गले लगी, और वो नीचे टीम के साथ जा रहे थे। और मैं फिर वहां से, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहां तक जाने के लिए भी मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था, बहुत तकलीफ। लेकिन वो जो प्रेयर फ्लैग्स होते हैं ना, वो जैसे मुझे बुला रहे हैं कि तुम आ सकती हो, आ सकती हो। स्टेप बाय स्टेप करके जब मैं वहां पहुंची, मैं कुछ नहीं, पहले तो सबसे पहले नमस्कार, मैंने एक स्टॉल लिया था, जो मैंने अपने दादाजी का पैर छुआ, और उनको मैंने उड़ाया। और मैंने दोनों साइड देखी थी, चाइना साइड में भी, इंडिया साइड में भी। और ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हूँ वर्ल्ड का। और ये आशीर्वाद मुझे मिल गया है, बस ब्लैंक थी। कुछ लोग ये आके जरूर, बहुत पढ़ा था मैंने कि नीचे की जर्नी बहुत खतरनाक होती है, लेकिन उस पल के लिए नीचे वो डर नहीं था, मुझे डर नहीं आ रहा था, लेकिन मैं बहुत स्तब्ध, और एक उसको पता नहीं, शायद जो एवरेस्ट है वो लोग समझ पाएंगे कि वो उस पल में क्या होता है। और मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ आपको, लेकिन वो एक बहुत ही ऐसी फीलिंग है, जो हमेशा के लिए आज मेरी ताकत है, कि मैं उस जगह में टिक के आई हूँ। और दुनिया की अभी कोई भी तकलीफ आती है, मुझे इतना आसानी से नहीं आ सकती। और उस टॉप में फिर आप जब प्रेयर वगैरह कर लेते हैं, फिर आप लास्ट ऑक्सीजन आपका चेंज होता है वहां पर, जो आपको नीचे साउथ समिट तक, माने साउथ पोल तक लाता है। कुछ लोग साउथ समिट में अपना बॉटल छोड़ते, वहां चेंज करते, लेकिन मेरा ऑक्सीजन बॉटल टॉप में चेंज हुआ। सब कुछ ठीक होके जाने के लिए जैसे लगाया, विद इन 5 मिनट्स में मुझे देखना, मुझे नीचे पैर नहीं दिख, माने
जमीन नहीं दिख रही, मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्लाउड में चल रही। तो मैंने दाजू को बोला, दाजू मुझे कहाँ पैर रखूं। मेरा ये सेंटेंस है, मेरा दाजू एकदम रोने जैसे, मैंने चिल्लाए कि बाप रे मारो। नेपाली में वो बोले कि मेरे मेंबर को क्या हो गया। उन्होंने वॉकी टॉकी निकाला और नीचे बताया कि आज रेस्क्यू की जरूरत पड़ेगी। मैम माने ऑक्सीजन मेम को माने हाइपोथर्मिया उनको हो गया है, वो देख नहीं पा रही है माने। तो लेस ऑफ ऑक्सीजन, मेरा उस ऑक्सीजन में शायद बाद में पता चला कि वो माल फंक्शन किया। कहाँ पर गलती हुई, उसमें ऑक्सीजन कम था और उसमें एयर ज्यादा थी। वो जो भी वजह से वो डिफेक्टिव ऑक्सीजन बॉटल कैसे आया, लेकिन जो भी था वो ऑक्सीजन से रिलेटेड था। और मैं विद इन जस्ट वो रीच जो सबसे खतरनाक होती है, बहुत मुश्किल से साउथ समिट तक हम पहुंचे। मेरे पीछे काफी लोग थे, मैं उनको बोल रही कि मेरे दाजू को थोड़ा हेल्प कर दो, मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले लो, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। सब चल रहे, सब हाँ हाँ करते हैं, लेकिन वो मैं भी जानती हूँ कि वो जगह वैसी जगह नहीं। कभी आप 1984 का बचिन मैडम का कि 93 में जो इंडो नेपाल का वुमन एक्सपीडिशन एवरेस्ट का हुआ था, वो लेडीज इतनी तब कॉमर्शलाइजेशन नहीं था। और बचिन दीदी जो अपनी तैयारी करती है ना, टीम मेंबर को इतना फिट करती है, स्कूल से लेते हैं। तो उस टाइम में तो वो लोग जो शेरपा लोग पागल हो जाते थे कि उनको ऑक्सीजन से प्रॉब्लम होता था, उनको पकड़ के वो लोग लाते थे। लेकिन हमारे टाइम में जब कॉमर्शलाइजेशन हो गया है, थोड़ा कंफर्ट जोन में जाते, थोड़ी फैसिलिटी के साथ बहुत कुछ साथ में होता है। लेकिन एक चीज तो सही कि एवरेस्ट एवरेस्ट, वहाँ ऑक्सीजन लेस है। आपको अपनी फिटनेस से जाना है और आपकी डेस्टिनी में वो होना चाहिए। नहीं तो बहुत धुरंधर लोग एवरेस्ट के लिए जाते हैं, लेकिन उनका तकदीर में वो नहीं होता है। तो मैं उस मामले में लकी रही कि माँ सागर माता ने एक मदर को वो ब्लेसिंग्स दिया। तो जब मेरा ऑक्सीजन का ये बात हुआ और मैं साउथ को मैं देखा, मेरा दादू और ऑक्सीजन बॉटल ढूंढ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा बेहोश हो रही। फिर मुझे जब होश आया, आई थिंक तो मैं ये शायद 1 बजे के आसपास दोपहर में होगा, और मुझे शाम को 7 बजे करीबन होश आया आफ्टर 7 आवर्स के बाद। तब तक मुझे मैं आंख खोले देख रही हूँ, मुझे 7-8 रोप से बांधा रखा है। तो उस टाइम में दादू ने अपना ऑक्सीजन मुझे दिया होगा जिससे मैं होश में आ रही थी। तो मैंने बोला दादू क्या हुआ, तो बोला नहीं मैम कुछ नहीं, नीचे से प्रदीप सर और वो लोग हेल्प आ रहा है। तो मैं जब वो लोग नीचे से आ रहे तो हम लोग चले, तो बोला आप रोप तो नहीं छोड़ दोगे, मैं ना। तो मैं भी नीचे उतरने के तैयार हूँ, आपने बांधा क्यों है मुझे। लेकिन बांधा था इसलिए कि मेरे पास लेस ऑक्सीजन है, मैं एनी टाइम अपना माने एंकर छोड़ सकती हूँ। इवन आपने कुछ देखे होंगे तो मैं अपने कपड़े वपड़े कुछ भी आप निकाल के, आप पागल हो के आप कुछ भी स्टेप ले सकते हो जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता था। तो उन्होंने मुझे अलग एक बिले देके स्लोप, जैसे मुझे याद है कि मैं 3 स्लोप नीचे उतरी। लेकिन बीच बीच में मैं जो बेहोश हो जाती थी, पूरा जो 7 आवर्स रहा होगा उसमें बीच बीच में मैं देखती थी कि दाजू मेरे कान में बोल रहे कि आप तीस्ता को याद करो, नानों को, ये मेरे 2 बच्चों के नाम है। तो दोनों को बोला कि मैम आपको बच्चों की, आप सो मत जाइए मैम, आंख खोले आंख खोले। और मैं तो ड्रीम पूरा जैसे परी लोक में थी। मैं ट्रांस हिमालय करके वहां गई थी, तो मैं अपना बचनी थी और अपनी टीम लोगों को जैसे मैं खेत में बैठी हूँ, इस तरह का मुझे सब भ्रम बोलते हैं ना, भ्रमित आप ले सकते में आपकी हाथ। तो मैं कंफर्टेबल हूँ कि मेरा शेरपा किस तरह से उसने उस पल को निकाला होगा। तो बीच बीच में मुझे हो रही थी, और वो नीचे कॉल भी करते थे और कुछ आके तुम मैडम को छोड़ो आ जाओ। तो दाजू बोलते थे नहीं मैं मैडम को नहीं छोड़ सकता, तुम्हारी भाभी को बोलो नीचे प्रेयर शुरू करे, ऐसी सब बातचीत मैं बीच बीच में टुकड़ा 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 सुन रही हूँ। और जब शाम को उन्होंने जो अपना ऑक्सीजन दिया है मुझे, तब मैं जो 2 स्लोप उतर के नीचे एक जगह में आई, तब मुझे नीचे लाइट दिखा जो साउथ पोल लास्ट कैंप था। उस दिन के क्लाइंबर जो चल रहे थे, लेकिन मुझे वो याद नहीं आ रहा कि वो साउथ पोल है, मैं ये समझ के नीचे गाँव है। तो मैंने बोला, तो बोला नहीं वही सर लोग अभी आ रहे हैं। मैं तो लाइट तो अभी उधर चली गई, ताजू आप सामने से लेने जाओ। तो उन्होंने बोला आप इसी एंकर में रहोगी, मैं तो हाँ, उठोगे नहीं, मैं तो ना। और मैंने सुना उन्होंने नीचे बोला कि अभी मेरे पास सिर्फ 15-20 मिनट का ऑक्सीजन है, इसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आपको जल्दी पहुंचना होगा। तो मैंने देखा कि वो लोग अभी काफी रास्ते में, वो लोग 3 बजे से चले कैंप 3 से, जो मुझे रेस्क्यू के लिए आ रहे थे जो सेठा। और दादू जस्ट थोड़ा गए हैं, और मैं वैसे बैठी थी और मैंने 2 लाइट देखा। तो मैं जैसे पास में है, मैं तो प्रदीप तो बहुत लंबे हैं, तो मैं तो प्रदीप का है, तो मैडम आप कुछ बोले, मैं तो पानी दीजिए, पानी नहीं ऑक्सीजन खाइए। उन्होंने मुझे नया ऑक्सीजन लगाया, कुछ फोटोज लिया शायद, और कुछ मेरा हाथ देखा, कुछ ग्लव्स वगैरह पहनाया उन्होंने। फिर बोला मैडम खड़े हो आप, उठ जाइए। तो मैं जैसे ऑक्सीजन लगाया मैं उठ गई, एकदम फ्रेश, जैसे आपको लगे आप बस में बैठ गए ऑक्सीजन आने से, इतना मुझे ताकत। लेकिन तब तक ब्रेन में काफी 7-8 घंटा में उस टाइम रात में -40 तक टेम्परेचर जाता है। मैंने अपने ग्लोव्स फेंक दिए, मैंने अपना मास्क फेंक दिया है, वो लोग जो मेरे लिए नए मास्क लेके आए तब तक मेरे गाल में। तो काफी कुछ 3rd डिग्री का फ्रॉस्ट बाइट
मुझे हो गया था ओह, और मैं पकड़ नहीं पाती क्योंकि मेरी लकड़ी जैसे हाथ हो गए। तो एक शेरपा आगे जो रेस्क्यू के लिए दो आए थे, वो दोनों के चेहरे में कभी नहीं भूली थी। और मैं उसके बाद भी उनका जाके मैं अपना जो ग्रेटिट्यूड है मैं उनको जाके मिल के भी आई। और वो मुझे लेके चल रहे थे, थोड़ा आगे चले बालकनी जो मैं जगह बोली, वहां मैं एक आदमी को देखा, लेकिन वो मेरा शेरपा ही था। वो वहां बैठे थे। वो इसलिए बैठे थे कि उनको डाउट था कि अगर मैं नहीं चली तो रेस्क्यू वाले शेरपा मुझे छोड़, क्योंकि अगर मैं नहीं चली तो घसीट तो नहीं ला सकते उस रात में। तो वो बैठे थे, लेकिन लकीली मेरी जो तैयारी में एक जो था, जिसको मैं बाद में योगा जानती हूँ, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस की तब योगा नाम से नहीं करती थी, मैं उसे एज एक्सरसाइज करती थी ब्रीथिंग का। तो वो मेरा बहुत कुछ शायद मेरा काम में आया। और तब तक नीचे सोचो, जो साउथ में मेरे हस्बैंड पहुंच गए, मुझे 5 बजे इवनिंग में पहुंचना चाहिए था, 7 बज गया, 9 बज गया, मैं नहीं पहुंची हूँ। बोल रहे कि नहीं उनका रेस्क्यू हो गया, वो लोग आ रहे हैं। तो वो अकेले, बाकी टीम तो सब थके हैं, सब सो गए हैं। तो जब मैं नीचे चली, मेरा सिरपाज पहुंचा 12 बजे, मिडनाइट 12 बजे पहुंच के वो टेंट के आगे कॉलअप्स हो गए। तो मेरे हस्बैंड ने उनको टेंट में लिया। अभी आपका शेरपा बिना मेंबर टेंट में वापस आता है, उसका मतलब है कि क्लाइंबर डेड है। ओह, तो प्रदीप ने पता चल गया कि मैं आई एम नॉट नो। ओह, तो वो सोच रहा है कि पहले तो इसको ठीक करे, उनको घसीटा, उनको सुलाया सेकंड बैग में। वो तो बेहोश है। पूछा एक दो बार कि मैम कहाँ है, लेकिन नहीं बोला, लेकिन इन लोगों ने मान लिया कि मैं अभी जिंदा नहीं हूँ। तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि मैं तीस्ता को क्या बोलना है, कि बेटी को बोलेगा कि मामा को पहाड़ बहुत पसंद है, तो मामा को सागरमाथा ने वहीं पर रख लिया है। तो ऐसा प्रदीप बेटी को क्या बताएगा करके वो सोच रहा है। हम्म, और मैं रात को 2 बजे वहां आके मैं पड़क हुई मुझे देख के। तो उस टाइम में जो एक इमीडिएट जो प्रया होना चाहिए ना, गर्म पानी में के हाथ, जो भी बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं बच गई, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। तो मुझे सिटी बैग में डाला गया। और सुबह में मैं देख रही हूँ कि मेरा जो सरदार शेरपा होता है वो आके मेरे को बांध रहा है। मैं उठ के एक ब्लैक टी शायद दिया, मुझे बोला कि आपका रेस्क्यू होगा, तो मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि रेस्क्यू साउथ पोल में नहीं होता है, कैंप 2 में होता है। मुझे अभी और कैंप 3 और कैंप 2 में पहुंचना है, माने अगर फिट होते हैं तो आप कैंप 2 तक रात तक पहुंचना है, उतना चलना है उस लोग में। फिर मेरा एक जो शेरपा आगे पीछे करते करते पकड़ के लेके गए। और तब मेरा जो मेन शेरपा था उसको भी काफी फ्रॉस्टबाइट हो गया था, वो नीचे उतर गए थे। मैं और मेरे हस्बैंड चल रहे थे, और मेरे हस्बैंड का भी 2007 में स्पाइन का हुआ था, फोर्थ वर्टिब्रा में उनका वो 9 मंथ बेड रिडन थे। बेड से उठने के बाद फिर अपने जो बहुत क्लोज फ्रेंड है आदित्य गुप्ता, उनके साथ उन्होंने अपना पहला तैयारी स्टॉक कमरे में जाके किया था फिटनेस का। और उसके बाद में 7,000 मीटर और एवरेस्ट तक की चढ़ाई की है। तो घर में मेरा चारों भी मोटिवेशन उतना ही था कि मुझे कहीं हिम्मत नहीं टूटती थी। तो उस टाइम में कैंप 3 में हमारा टेंट नहीं था, हमने तो कैंप 3 तक हम लोग बहुत थक चुके थे। और कैंप 3 में रिटर्न में कोई नहीं रुकता है, वो सबसे खतरनाक जगह है। वो पूरा एवलेंस प्रोन एरिया है, तो जस्ट क्लाइंबिंग के टाइम में आप साइड में जाते हो तक वहां पर कैंप लगता है। तो हमने देखा हमारा टेंट नहीं है। फिर हमारा जो रेस्क्यूअर शिल्पा बोला कि हम इससे आगे अभी नहीं चल पाएंगे। तो उस दिन जो ऊपर में गए उनका टेंट खाली था, उसमें हमको दे दिया कि आप लोग रहिए, सुबह में आपका एजेंसी के लोगों को भेजेगा। तो हम दोनों को अंदर डाला उन्होंने और वो चले गए। और वहां जो एक सिरपा बैठा था उसको बोला कि इनको थोड़ी मदद कर देना। तो उन्होंने बोला ये स्टव है, बाहर बर्फ पड़ा है, आप लोग ले लेना पानी, यहाँ सब पॉकेट में खाना पड़ा है। हम दोनों बिल्कुल नहीं हिल पा रहे, हम दोनों ऐसे ही बैठे हैं। अनदर 1 आवर हम कुछ नहीं बोले थे। वो शेरपा को पता नहीं भगवान ने भेजा, उसे चेन खोल के देखा। वो आप लोग अभी तक बैठे पानी नहीं पिया, हमने खाली इतना ही मिलाया। तो बोला प्रदीप बहुत मुश्किल से बोले कि आप पानी बना दोगे। फिर उसने बना के तुरंत दिया, 1.5 लीटर 2 बार बना के दिया, हमने पिया, थोड़ा एनर्जी आया। और मैं तभी भी पागल जैसे कुछ ना कुछ बोल रही थी। प्रदीप बोला तुम चुप नहीं होगी तो मैं पागल हो जाऊंगा, और हमको अभी नीचे भी जाना है, तुम थोड़ा चुप हो जाओ। लेकिन ऑटोमेटिक वो बोलती जा रही थी। फिर मेरा तो हाथ नहीं था, मुझे टॉयलेट जाना था, सब कुछ उन्होंने कराया। और बैठे ही रात भर बैठे ही रहे, क्योंकि वो जगह भी वैसे ही था। रात को फिर बोला मुझे ऐसे ही चॉकलेट खा लो, एनर्जी कहाँ से आएगा। तो बहुत मुश्किल से हमने खाना खाया। सुबह 5 बजे मेरा जो आंटी आंटी करके आवाज आया, वो मेरा कुक का जो किचन में काम करता था, उस बच्चे आए थे लेने के लिए। वो बहुत टफ थे। वो बच्चे को ऐसे ही मैंने कभी मैंने गिर गया था तो मैंने उसको थोड़ा दवाई लगाया था, लेकिन वो बहुत ही प्यार करता था। वो बोला आंटी हम लोग लेने आए, उसने मुझे फिर शूज वगैरह पहनाया और अपने पेट के ऊपर लेके, क्योंकि मैं रोप नहीं पकड़ पा रही हूँ ना, तो जुमार के साथ मेरा वो फिट करके एंकर लगा के एक मेरा पीठ में लेके, जो भी वो बच्चों को जानते थे वो लोग उस तरह से लेके, प्रदीप तो अपना धीरे धीरे चल ही रहे थे। करते करते तब तक मेरा रेस्क्यू का हेलीकॉप्टर के लिए बात हो चुका था। और जस्ट कैंप 2
वो हम लोग नीचे पहुंचे। मैं ऐसे बोल रही हूँ लेकिन वो इतना आसान नहीं है। कैंप थ्री से का उस लोग कभी आप यूट्यूब पे देख लेना कि क्या चीज है। जो एक आए हम कैंप टू में, तब तक मैंने देखा बैरोजर में हेलीकॉप्टर का आवाज सुना, और वो सबसे 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 अच्छा आवाज था। और वो आया और हमको सीधा अंदर डाल दिया। खाली पायलट का ही सीट था, हमको अंदर में डाल दिया और सीधा बेस कैंप में। और बेस कैंप में जब आए तब हमारे टीम के जो मेंबर थे वो लोग वहां पर थे। एक ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर जो थे, डॉक्टर जैफ, एंड जो लोग रेस्क्यू किए थे वो टीम थी ऑस्ट्रेलिया की। तो वो लोग मेरा लिए, उन्होंने मुझे चाय वाय वगैरह पिलाया। और वाइंड अप थोड़ा करना तो प्रदीप रुक गए, मुझे तुरंत दूसरा हेलीकॉप्टर से लुकला भेजा, जो जहां से हम लोग काठमांडू से लास्ट एयर स्ट्रिप है। और लुकला में बैठने के बाद फिर थर्ड हेलीकॉप्टर से मुझे काठमांडू जाना है, लेकिन मैं बोली नहीं, हम टॉप में शायद प्रदीप हम आगे पीछे हो गए, लेकिन नीचे जर्नी में मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। तो मैं वहीं बैठी, तब तक वही रही, उन्होंने कुछ खिलाया पिलाया। मैंने अपना चेहरा सब एकदम पंपकिन जैसे हो गया था। एंड फिर अनदर थर्ड हेलीकॉप्टर, फिर सेम नाइट हम काठमांडू, मुझे एडमिट किया गया और सारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। और मैं सिलीगुड़ी में, मेरा अपना फैमिली का नर्सिंग होम है, तो मुझे नेक्स्ट डे तुरंत फिर सिलीगुड़ी में आई। लेकिन मैं सबसे बात करती थी, किसी को ये नहीं पता था कि मैं कितना थर्ड डिग्री, कितना स्टेज लेवल का मेरे को हो चुका है। और मुझे भी उसका सीरियसनेस नहीं पता था। लेकिन जब नीचे आने के बाद में फिर प्रदीप के जितने कॉन्टेक्ट से, हमारे जितने माउंटेनियर फ्रेंड्स थे, तो बहुत कुछ है कि जर्नी रहा कि एम्पुटेशन कराए कि ना कराए। तो ये भी एक ऐसा रहा कि मैं 3 बार ओटी से, एनएसएस से देते देते 3 बार मैं वापस आई। मैं बोलती थी क्यों करना है, तो बोला नहीं, ब्यूटिफिकेशन के लिए। तो मैं तो, एक तो ड्रेसिंग नहीं होता है, आप मेरा थाई से एक स्किन निकाल के फिर यहाँ ग्राफ्ट करोगे, फिर उसको भी मुझे देखना है। मैंने प्रदीप को देखती थी, प्रदीप बोला नहीं, तू जैसी है वैसी अच्छी है। फिर मैं अपने दोस्तों, मेरा माइनिंग ग्रुप है, उनको मैं पूछती थी कि मुझे ये ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, तो बोला नहीं, तुझे तेरा दिल क्या बोलता है। मैं तो नहीं दिया प्रदीप, मैं तो ना, वो भी नहीं चाहते। तो बोला मत करो, थोड़ा और रुक जा। तो दोस्त भी ऐसे सपोर्ट करते कि, और उस टाइम में आप कभी फोटो में शेयर करूंगी फ्यूचर में, तो वो इतने अगली थे कि इतना बर्दाश्त करना भी आसान नहीं था। लेकिन अभी मुझे इतने कि मैं जब भी मैंने कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं कराया, ये दोनों में जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि माँ सागर मत्था ने मुझे ऐसी किस दे दी है परमानेंट, ऐसा प्यार दे दिया है। मैं जब देखती हूँ तो ब्यूटीफुल स्टोरी, मेरी जो भी जर्नी रही, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, और मुझे हमेशा नेचर ने मुझे प्यार और स्ट्रेंथ, और मेरे पास एक बहुत स्ट्रांग, जो बोलेंगे लीडर या मदर जो है, बची दीदी मेरे साथ है। और उनके आगे पीछे एक बोलता है, उनकी ऑरा मुझे मिलती है। फैमिली में मेरे हस्बैंड के रुड़की के सारे फ्रेंड्स है, माइनिंग के फ्रेंड्स है, दे आर वेरी स्ट्रांग पिलर, जहाँ मुझे इधर इधर कहीं गिरने नहीं दे रहे हैं। इमोशनल पार्ट है, कहीं ना कहीं से कोई आ ही जाते हैं जिंदगी में। मुझे कहीं दर्द होता है, कभी छोटा दर्द होता है, कोई छोटा थेरेपी दे देता है। कभी मैं दुखी होती है, कोई ऐसा कॉल आ जाता है, कोई ऐसे चैट हो जाती है कि मैं वापस खुश हो जाती हूँ, और मुझे मेरा लाइफ का मकसद फिर से मिलता है। और मैं चाहती हूँ कि जो भी मैंने लर्न किया, जो मैंने पाया है, वो मैं, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, उसका हिस्सा, उसका आनंद वो लोग भी ले, और हेल्दी और हैप्पी लाइफ जिए। और नेचर आपको, जब आप पहाड़ में चढ़ते हैं, आपकी बुराइयां जो है वो पैर के नीचे से निकल जाती। मैं ये नहीं चाहती कि सब लोग माउंटेनियर बने। सब लोग का अपना सपना है। आपका जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, शायद आपके लिए एवरेस्ट होगा आज के दिन का। आपका सपना, एक आपकी ऊंचाई, आपका एक ड्रीम, आपका एक काम, उस लेवल में जो है वो आपका एवरेस्ट है। सबका अपना अपना एवरेस्ट है, अपनी अपनी जगह में। लेकिन माउंटेनियरिंग एक ऐसी चीज है, बचन दीदी बोलते हैं कि सबको कोर्स करना चाहिए। माउंटेनियरिंग आपको कभी भूखा नहीं मारेगा, आप कभी भूखे नहीं रह सकते। और हेल्थ, हेल्थ है तो सब कुछ है। मेरे पास पैसा है, लेकिन अगर मैं उसको यूज नहीं कर पा रही हूँ तो क्या। और पहाड़ से मैं इतनी सीखी हूँ कि मेरे पास 1 रुपया नहीं, कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, कहीं ना कहीं से। वो क्योंकि आप ऑनेस्ट वे में जब आप सोचते हो तो आपको वो आता है। और दूसरा ये भी होता है कि एक विडो होने के नाते, कि एक मदर होने, बहुत सारी चीज आती है। ऐसा नहीं कि मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं रास्ता मिलता है मेरी फीलिंग्स करने के लिए। मैंने योगा का, मैं पढ़ने की, मैं हमेशा लर्निंग, मैं फॉलोअर नहीं हूँ किसी की, लेकिन मैं जरूर उनकी अच्छाइयों को लर्न करती हूँ, और गलतियों को एक करती हूँ। मेरे साथ जितने भी है, उनकी गलतियों से मैं सीख लेती हूँ कि वो जो गलतियां वो करते हैं, मुझे दर्द देता है, वो मुझे अपनों के साथ नहीं करना। और दूसरों को मैं अलाउड नहीं करना चाहती हूँ कि आई एम नॉट ए डस्टबिन, आप अपना कचरा मेरे में मत डालो, मेरी अच्छे या लो, आप सीखो। क्योंकि इस एज में 50 के साल, ये इनिंग में अच्छा अच्छा खेलना चाहती हूँ।
कि अच्छा करो, ऑनेस्ट वे में करो। और मेरे जितने चाहे दूर नहीं, जितने मेरे परिवार के और मेरे दोस्त है, मेरे अपने हैं और जो मेरे टच में आते हैं, वो जो मैंने लर्न किया है वो उनको मैं दूं। बांट के खाओ, बांट के खाने का एक मजा अलग है। एक टीम वर्क, माउंटेन की टीम वर्क है। सब थोड़ा थोड़ा, आप अकेला नहीं। एक बैलेंस डाइट, एक बैलेंस डाइट आपको मिलता जाएगा और आप लाइफ आगे बढ़ोगे। तो ये वाओ मैम, वंडरफुल। आपकी स्टोरी तो एक मूवी बन सकता है। एक्चुअली गॉड का ब्लेसिंग आपके ऊपर रहा, जो इतने सारे डिफिकल्टीज के बावजूद, आई मीन, आई एम सीइंग यू सो हेल्दी एंड फिट। गॉड ब्लेस यू मैम, सीरियसली इतना इंस्पायरिंग स्टोरी है आपका। तो आप मैम फ्यूचर माउंटेनियर्स को आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? अगर कोई माउंटेनियरिंग करना चाहता है या माउंटेनियर बनना चाहता है, तो कोई सजेशन है उनके लिए आपके पास? सबसे पहले माउंटेनियर, एक तो उसके पहले अंदर में वो पहला स्पार्क तो उनमें होना चाहिए। राइट। दूसरी बात यह है कि अगर कोई सामने आता है, और मैं एज एक्सपीरियंस माउंटेनियर जैसे मैं थी, और बच्चे दीदी ने मेरे को पहचाना और मैं लर्न करती गई, उनका जो भी देख के मैं लर्न करती गई। एक हाथ से ताली नहीं होती, हम्म। है ना, दोनों हाथ चाहिए। तो ऐसी एक सिचुएशन आती है, और जब आप सपने देखते हो या कुछ बनना है, तो वो सपने आपको सोने नहीं देते। मैं आज भी अगर रात को 2 बजे भी आंख खोली, मैं सीढ़ी में चली जाती हूँ चलने के लिए। एक बैग हमेशा रेडी मैं पीठ पे डाल के, क्योंकि एक रहता है कि फिटनेस तो करना ही है। तो माउंटेनियरिंग का में जाने के लिए आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना है, हमारे टाइम में इतना नहीं था। कोई देख लिया, कोई गुरु ने बता दिया, वो तो एक ब्लेसिंग ही रहा कि किसी ने हमको ये रास्ता दिखाया। लेकिन आजकल बहुत है बच्चे लोगों को अपना एक टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करे, और उनको करना है तो बहुत ही एक बड़ा चीज होता है ना, हमेशा उसको टुकड़े में छोटा छोटा कर दीजिए। बोलते हैं ना, एक साथ में आप बड़ी डंडी को नहीं तोड़ सकते, लेकिन एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके आप उसको अपना गोल तक जा सकते हो। राइट। तो सबसे पहले तो मन से तैयार हो, है ना। उसके फिर आपको अर्जुन की आंख, आपको वो देखना चाहिए कि ये मुझे करना है। इस हर परिस्थिति के लिए आपको तैयार होना है। और माउंटेनियरिंग के लिए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, और आप 15 एज से लेके शुरू कर सकते हैं। वैसे एज लिमिट आजकल तो कहीं, एज तो जस्ट नंबर है ना। और नंबर तो मैं खुद भी जाके, एज जस्ट नंबर है। क्या एज कुछ नहीं है, आप अंदर में सपना देखो, 15 साल का भी सपना देख सकते हो, है ना। लेकिन एक बार ठानने के बाद पीछे नहीं, आपको उसमें मेहनत करना है, हार्डवर्क करना है, ऑनेस्टी करना है। और अगर माउंटेनियर तो उन्हीं के बीच में, उन्हीं सराउंडिंग में रहो, ठीक है। अगर मैं माउंटेनियर बनना चाहूंगी, लेकिन अगर मेरे फ्रेंड्स मॉडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, मैं महीने में एक बार मिलूं उनसे, बात अलग। लेकिन मेरा ज्यादा समय है वो माउंटेन। अगर मुझे फ्लाइंग करना है तो मैं, है ना, हॉक के साथ ऊपर, ईगल के साथ फ्लाई, उसको देखो, उसके चारों ओर उसको देखो। चाहूंगी कि अपना फोकस रहे, मेहनत करें, और कभी गिव अप नहीं करना है। और कदम आगे, एक एक रास्ता। जब हमने वो लंबी जर्नी की, मैं तो वो एक पाठशाला रही है। बच्चे दीदी बोलती थी एक स्टेप, हम कहीं बोलते यार तो यहाँ रुक जाते, तो बोला नहीं, एक स्टेप तुमको घर से दूर लेगा, आप घर से दूर हो जाओगे। तो फिर हम लोग चल देते थे। तो स्टेप बाय स्टेप ये एक रहता था। ओके। सो मैम, अच्छा, आपके फ्यूचर, कुछ फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस पे भी आप क्या प्लान्स है मैम? जब एवरेस्ट का फ्रॉस्टबाइट हुआ तो 1.5 ईयर में अंडर मेडिकेशन रही, क्योंकि मेरे अपने करीबन 7 टिप्स, और पैर की 2 उंगली में भी फ्रॉस्ट बाइट था, गाल में था, और मैं एम्पुटेशन नहीं कराना चाहती थी। तो मुझे 1.5 ईयर मैं घर में रही। उसके बाद में फिर मैंने भेजे वापस, मैं एवरेस्ट बेस कैंप गई बच्चे के साथ, पहाड़ के टच में रही मैं। नेटवर्क शायद। शायद नेटवर्क इश्यू, हाँ। अभी अभी मेरा फ्यूचर अभी है कि मैं बहुत लकी हूँ कि जो 97 में ट्रांस हिमालय, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, दे रहा है, दे रहा है। बीच में चला तो गया था नेटवर्क, अभी आ गया। हाँ, हाँ, हाँ। तो 97 का ट्रांस हिमालय को अभी 25 साल हो गया। वही सेम जर्नी हम फिर से करने जा रहे हैं, लेकिन ये जर्नी थोड़ा यूनिक है।
इसमें 50 to 70 ईयर्स का बीच की लेडीज है, ऑल माउंटेनियर्स है। वाह। तो हम लोग अभी नेक्स्ट मंथ वुमेन्स डे के दिन हम लोग अपना ये जर्नी अरुणाचल से कारगिल के पास टाइगर हिल, लेह लद्दाख तक हम 5 मंथ्स का ट्रेकिंग करने जा रहे हैं, जो हमारा मार्च से शुरू होगा और अगस्त फर्स्ट वीक तक हमारा ये होगा। वाह। तो उसका तो जरूर हमारा टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन से भी अपडेट होता रहेगा और आपको भी उसका पता चलता रहेगा। वाह, ऑसम मैम, वेरी नाइस। बहुत इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी है मैम। आई मीन जो आपने ठाना वो पूरा किया और अभी भी कर रही हैं। रियली ऑसम। तो मैम आप क्या मैसेज देना चाहेंगी विमेन यूथ को, विमेन को या आज के यूथ को? आजकल के बच्चों के अपने बहुत सपने हैं, लेकिन जो भी सपने देखे, मैंने पहले भी बताया कि गिव अप नहीं करना है और एक ही फोकस होके उस लाइन में चले। जरूर कोशिश करें, तो एक बार, दो बार, 3 बार, अगर 3 बार आपको लगता है कि नहीं ये मैं इसके लिए नहीं बना हूं, तो आपको रियलाइजेशन हो जाता है, तो आप जरूर दूसरा रास्ता पसंद करें, लेकिन उसके लिए भी कोशिश करते रहिए कि क्यों नहीं होता है ना। अपना जो अपना वीकनेस है उसको फाइंड आउट करो और फिर आप स्ट्रांग बनाओ, है ना। हम मदर हमने क्या किया, सर के साथ हमारे साथ नहीं हुआ है। अभी बच्चे मेरे सेट है, बच्चे पढ़ रहे हैं अपनी जगह में, मुझे वापस इसमें जाना है और मेरा सर्कल भी ऐसा है कि सब फिटनेस वाले हैं। तो अपना फिटनेस बना के सबसे पहले मैं, अगर मुझे भूख में आदत है खाने की, और मैं दूसरों को ये नहीं बोल सकती कि तुम मीठा मत खाओ, इसलिए मुझे पहले छोड़ना पड़ेगा। तो सेम है, अगर मैं दूसरों के लिए अगर मोटिवेशन, या आज मैं बच्चों को या वुमेन्स को, या मेरे एज की अभी 55 में हूँ, तो 55 कोई भी लेडीज को जब आप बोलते हैं अब तो मैं रिटायर्ड हो गई, रिटायर्ड क्या होता है, अभी तो आप 5 साल के, अभी तो आप असली लाइफ तो अब शुरू हो गई है। तो उसको आप पॉजिटिव में लीजिए और खुद को खुश रखिए, और खुद खुश होने से ही तो आप दूसरों को खुश रख पाएंगे, हेल्दी रख पाएंगे। और मैं सबसे ये चाहती हूँ कि हेल्दी रहो। बिल्कुल। हेल्थ है तो फिर हैप्पीनेस आएगा, हेल्थ एंड हैप्पीनेस है, पैसा अपने आप आता है। बिल्कुल। और फिर वो हेल्थ एंड हैप्पीनेस होने से आप, आपके पास जो पैसा है उसका आप सही इस्तेमाल करेंगे। आप सोच लो छोड़ के जाओगे तो क्या। मैं प्रदीप आज, वी लॉस्ट हिम इन 2016 सेम ईयर, आफ्टर एवरेज के 6 मंथ के बाद उसको हार्ट अटैक आया था, लेकिन उसने 50 साल की एज में 100 ईयर्स की लाइफ जिया, सारे सपने। तो वो नॉट बैड, है ना। तो मैं वो एज के कितना साल जीते हो लंबे, वो नहीं है, कितनी पल में आप जिंदगी जीते हो, राइट, राइट। क्वालिटी वाली। और वो जिंदगी जो आप चाहते हो, 21, कोई भी चीज की आदत करो, गलत आदत, आतंकवादी बनना है, पिए कर, जो भी बनना है तो आप वो बन जाएंगे। अच्छी आदत करोगे तो वो भी बन सकते हो। सब कुछ हमारे हाथ में है। कोई आपका हैप्पीनेस, आपका दुख दर्द की जिम्मेदार सिर्फ हम है। कोई हिला, इसकी खुशियों की चाबी हम किसी को नहीं देना है, लेकिन खुद खुश रह के लोग मोटिवेट हो, लोग लर्न करें। फॉलो नहीं, मैं तो नहीं चाहती कोई मेरा फॉलो करे, लेकिन लर्न जरूर करें। मैं एक दूसरे के साथ ना, जो भी आते हैं हम लर्न करते हैं एक दूसरे से। प्यार की कुछ पल आती है जो आपको और हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगी और हेल्थ की तरफ ले जाएगी। खुद खुश रहो, खुद हेल्दी रहो, दूसरों को भी इस तरह से करो। ज्यादा अपेक्षाएं नहीं करके, ज्यादा माथा पच्ची, है ना, ज्यादा कोई टॉपिक को ये नहीं करके, करना है तो करो, बीच वाला रहे, हाँ या ना। और फिर टाइम वेस्ट मत करो, ना खुद का करो ना दूसरे का करो। टाइम टाइम कभी जब आप खुशी के साथ टाइम बिताते हैं तो समय कहाँ चला जाता है पता नहीं। लेकिन कोई जैसे आपके लिए कोई कर रहा है तो उसका एनर्जी एंड टाइम आपको कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, चाहे आपके परिवार हो, चाहे आपका दोस्त हो, कोई भी। एनर्जी एंड टाइम जरूर ये करो अपने सपनों को लेके, और सही समय का इंटेलिजेंट वे में उसका यूज करें बच्चे लोग। और लाइफ को अच्छे से, क्या जरूरी है उसको भी, क्या सही है गलत है, गलतियां करो, गलतियां जितनी करोगे उतना लर्निंग होगा, लेकिन गलतियों का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। एक बार, दो बार, हर गलती में चूक जाना चाहिए। एक गधा भी होता है, एक घोड़ा भी होता है। गधे को मार मार के चलाया जाता है, घोड़ा को एक टक्कर दे दो वो चलेगा। तो अभी आपके हाथ में है, आपको क्या बनना है। रास्ता ढूंढो और चलो। लाइफ बहुत सुंदर है, बहुत सिंपल है। पहाड़ों से लाइफ मेरा बहुत कंफर्टेबल है, बहुत सिंपल बना दिया। मुझे कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं लगता है, कोई जगह प्रॉब्लम नहीं लगता है, क्योंकि उसका एक्शन में तुरंत करती हूँ। दुख है तो दो ओपन बुक जैसे, कोई छुपाना नहीं हमको। जो है, जो छुपाना है वही छुपाना है कि कहाँ किसी का लाइफ एंड डेथ का है, तो वहां आपको फिर
सोचना है कि भाई हम इसको बचाने के लिए, अगर कोई झूठ बोलते हैं किसी को बचाने के लिए, तो वो झूठ नहीं। जैसे बच्चे को खिलाने के लिए हम बोलते हैं कि भूत आएगा अगर तुम नहीं खाएगा तो। उसके पीछे माँ का मकसद बच्चों को डराना नहीं, खाना खिलाना, और बच्चा वो भावना भी समझता है और खा लेता है। तो इस तरह से अपने परिवार और दोस्तों के साथ आगे बढ़िए और खुश रहिए। बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। इतना मोटिवेशनल ये सेशन रहा है। और थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग। और मैं ये वीडियो शेयर करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये देखें और इंस्पायर हों, मोटिवेट हो मैम। इट्स सच अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ योर्स। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन ट्यून्स, and all the best ma'am for future expeditions, and keep inspiring us. थैंक यू नीतू। Thank you. Bye. Bye to all the viewers.